अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर एजाज शाह लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। I am sure you are a professor and the doctors, you will analyze it, whether it helped this society or not at that time. When this thing happened, because जब भी कोई चीज़ आप करते हैं ना, you prepare the society for that. किसी चीज़ के लिए भी, let us say, if the ladies are going to cook आलू गोश्त, they are going to prepare. पहले कोई प्याज लाए, कोई थोम लाए, कोई ये ऐसे तो नहीं चढ़ा देते. So I think we went into this concept without preparation. And over a period of just split of a second, once we promulgated this ordinance, all those good members of the society became the criminal. And since then, we are treating them as a criminal. Whereas my experience, I have almost about 25-30 years experience, which I say, all those people who are addicted, they are not the criminal, they are the victims. क्रिमिनल वो हैं जो कि ये सप्लाई करते हैं. एंड दिस मस्ट बी अंडरस्टूड कि क्रिमिनल कौन है सारे में. क्रिमिनल वो है जो कि इस चीज़ को प्रोवाइड करता है, और जो बेचारे विक्टिम होते हैं वो पेशेंट है. अभी डॉक्टर साहब ने न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट जो था, आई हैड ए बिग डिस्कशन विद हिम. Then we went to the Prime Minister also. We presented, Dr. Saab presented a very difficult presentation. It went over my head at least. I don't know whether the Prime Minister understood that or not. But it was a very technical and a very good presentation. And we got the decision from the Prime Minister that we are going to establish an institution of the neurosciences in Government College, Lahore. The building which we have just seen, probably we could have inaugurated that also, but still the executive order has to come. The procedure of the government procedure, because there is going to be money involved and everything. Some people are going to, be posted there and things like that. So once we get the executive order of the Prime Minister, which is already, the decision has been taken, and inshallah we will establish this. But let me tell you here this one thing also, because this is something very new. I spoke to Professor Saab on that night. When I was going to the Prime Minister, I spoke to the Punjab University Vice Chancellor and one or two more universities Vice Chancellor. तो जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं न्यूरो साइंस, बेसिकली द मेंटल इलनेस. तो मेंटल इलनेस जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो बीमारी गिनी ही नहीं जाती, क्योंकि हम समझते हैं कि द मेंटल इलनेस इज़ द बीमारी ऑफ द वेस्ट. हमारे तो जब मेंटल इलनेस होती है, द ओनली बेस्ट थिंग इज़ दैट वी गो मौलवी साहब के पास जाके उसको दम कराते हैं और वो ठीक हो जाता है. तो इसलिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इट्स ए क्लॉसल, आई थिंक देयर इज़ ए बिगिनिंग, प्रोफेसर साहब, एंड यू हैव ए क्लॉसल, बिकॉज वी हैव टू कन्विंस द सोसाइटी कि नो, दिस डिजीज़ इज़ नॉट द डिजीज़ ऑफ द वेस्ट. दिस डिजीज़ इज़ even with the Muslim and in the subcontinent, in the entire world. And if you don't take care of it, probably 50% people who will be by 2030, they will not grow well, they will have this illness. तो फिर सोसाइटी आप देख लीजिएगा, जबकि 50% एक सोसाइटी में बंदे वैसे ही मेंटली बीमार हों तो क्या बनेगा. बिफोर कमिंग हेयर आई थॉट आई विल, मैंने ऐसे अपने पॉइंट लिख रहा था. ये ड्रग एडिक्शन तो बड़ा है, लेकिन मैं आई जस्ट सम इट अप. ड्रग्स पर वो बंदे लगते हैं जो कि सोसाइटी से डिससेटिस्फाई हो जाए, डिसग्रंटल हो गया बंदा. देयर कैन बी मैनी रीजन्स. इट कैन बी इकोनॉमिक रीज़न, इट कैन बी सोशल रीज़न, इट कैन बी दैट ही वांटेड टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड, उसने शादी नहीं कर सका तो शायद इसलिए लग गया. सो देयर आर सो मैनी रीजन्स. Dissatisfied with the man, with the society, he goes for the drugs. और दूसरा ये है कि वो जिस तरह के डॉक्टर ज़रका साहबा ने बताया, the second story which she gave us of the rich people, the rich children, वो भी यही होते हैं कि उनके पास the have nots वाला है बात होती है, तो उनके पास भी इतना कुछ होता है that when they feel they cannot do anything, what next? Because they have achieved everything in the life. कहते हैं रोटी
रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, गाड़ी, एवरीथिंग इज़ देयर। सो व्हाट नेक्स्ट? देन नेक्स्ट इज़ द ड्रग्स। सो ये हमारी सोसाइटी में जो है चीज़, इसके लिए आई कैसे, इसके ऊपर भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ द डे वी लॉस्ट आवर वैल्यू सिस्टम इन दिस कंट्री, मेरे ख्याल में आई एम वन ऑफ द सीनियर मेंबर हु इज सिटिंग अराउंड, मुझे वो 1-2 इवेंट पाकिस्तान के बनने के भी याद है। सो आई कैन टेल यू दैट ड्रग्स, जो भी हमारी क्राइसिस हैं इस वक्त सोसाइटी में, वो इसलिए हैं दैट वी हैव लॉस्ट द वैल्यू सिस्टम्स ऑफ आवर सोसाइटी। Where we are today, it is because of this. And the second teaching institution was the home. वो भी आपके सामने है कि what teaching or training we are giving to our children. One of my uncle used to narrate a story to me. He used to say that when we were young and working, तो हमने जब दफ्तर जाना होता था, तो जब हम दफ्तर से वापस आते थे तो the wife will, 5-6 बच्चे तो माशाल्लाह उस वक्त भी होते ही थे, तो वाइफ ने कहना बेटों बच्चियों को सो जाओ, अब्बू आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं, थके हुए हैं, सो जाओ। तो बाय द टाइम द हस्बैंड यूज्ड टू कम होम, उन्होंने बच्चों को सुला दिया होता था, द मैन विल कम एंड हैव ए लंच इन पीसफुल वे एंड देन गो टू स्लीप हिमसेल्फ, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन द चिल्ड्रन विल गेट अप एंड गो आउट एंड प्ले। तो अभी उन्होंने कहा कि अभी ज़माना ये है कि हम जब काम करके आते हैं तो वाइफ इफ़ शी इज़ हैविंग ए चाइल्ड 2-3 माशाल्लाह, तो नौकर नहीं है तो वो एक वो उठा के खड़ी होती हैं। द मोमेंट द मैन कम्स वो कहती लै ए पढ़, सारा दिन मैं सांभे हुण तू सांभ। सो वो जो था ना दबदबा और रोब और वो जो था द फादर का जो इंस्टीट्यूशन था, वो भी कंप्रोमाइज़ हो गया। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आई फील आई बिलोंग टू, एज Brigadier Rashid was saying, I belong to a village of Nankana Sahib. I know, I have seen fathers and mothers robe jo tha. Even in the villages, this institution, the institution of a house, the parents, वो ख़त्म हो गया। इसलिए ये जो हमारा है, I will not take much time. Coming back, that selection of this institution, I think, as a drug-free institution, that ये इसलिए नहीं है कि यहाँ ड्रग्स ज़्यादा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट हिस्ट्री यू हैव, एंड दैट इज़ हाउ द पंजाब यूनिवर्सिटी हैज़ बीन पिक्ड अप टू बी डिक्लेयर्ड एज ए ड्रग फ्री इंस्टीट्यूशन। और इसको ड्रग फ्री इंस्टीट्यूशन करने के लिए डॉक्टर साहब, लाहौर में वफाकी वज़ीर एजाज शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे की बेहतरी के लिए नौजवानों को मनशियात से बचाना है। ये भी कहा कि पाकिस्तान में जराइम में काफ़ी हद तक कमी आई है।